Good morning, everybody. Am I audible to you? Just mention yes in the chat box so that I have an idea. Okay, fine. So majority of you are getting my voice. So let's start our session straightforward. What we have done in the previous session that we have yes, yes, we are drawing a sketch of a theodolite and we are trying to understand the various components of it, right? So in today's session, we are going to learn the different functions of each and every component of theodolite, right? And meanwhile, I will demonstrate one, you can say, project which is done by your seniors, okay? And we will learn that also. So, how many of you have completed that sketch of theodolite? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, Joe. So just mention yes that I have completed my sketchbook. Okay, because this sketchbook that you need to submit at the last, right? Hardly we can say that 20% student have completed, right? So you all have to complete that task, right? And you need to submit whenever asked for. So without drawing a sketch, you might have a problem in understanding of the different component of the theodolite, right? So I'm sharing a screen with you, and yes, this is what we are discussing in the previous sessions. So this is our flow chart. You just this we have discussed in the previous sessions, right? So we are at the last component, you can say, sketches of the theodolite with its component, right? So in this session, we will write the functions of each and every components, okay? And we will understand the functioning of the clamping screws, right? So which is the part of the theodolite. So here you can see the image of the theodolite, right? So when you come to the college, we will directly go to the field, right? After understanding this. These things we have already discussed. What are the uses of the theodolite? We can say that we can measure the horizontal angle and vertical angle by using the theodolite. We can prolong the survey lines. We can find the difference of the level. We can range the curve, right? And we can do for the tech. We can go for the tachyometric survey. So this is what we are discussing in the previous session. We need to understand the components. You can see I'm starting from the bottom itself. First and foremost thing you can say a plumb bob, right? So first thing you require to draw this sketch, it is vertical axis, right? After the vertical axis, you need to start the building the theodolite from the bottom. So first of all, you will build a tripod stand. You will draw the tripod stand, right? So this is a tripod stand, you can say, right? So I'm drawing it right now on your screen so that you will have idea. So I'm highlighting it so you will get the idea, right? So this is this image, this yellow color highlighted portion is, you can say, your tripod, right? So this is the very first component on which our theodolite will rest. ये हमारा पहला कंपोनेंट है जिसके ऊपर हमारा थियोडोलाइट रेस्ट करेगा, ट्राइपॉड के ऊपर, ठीक है? और ये हमने पहले ड्रॉ किया था, ट्राइपॉड के लेग, ठीक है? देन these are the things, yes or no? उसके बाद we have drawn the trivate. So trivate is, you can say, a supporting structure to the foot screw, right? So I'm highlighting once again that the trivate portion, you can see. So after that we have drawn this,
right, on which our foot screw will rest. ठीक है, तो हमें फुट स्क्रू को सपोर्ट देने के लिए हमने ट्राइवेट बनाया था। ठीक है, उसके बाद हम फुट स्क्रू बनाएंगे, तो फुट स्क्रू जो वो लेवलिंग पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है, सो that round ball is there, you can see here at the bottom, and we will construct a foot screw like this, right? So here you can see the what we have drawn in the sketch of the trivets, right? So the foot screw will rest on the trivet, and this is the foot screw. This is another component of the theodolite. Then at the end, you will have a tri bridge. Okay, tri bridge. So in the tri, you can say the spindle is connected, right? So which will provide a support to the uppermost portion of the theodolite. So this is that tri wedge, you can say, right? And yes, spindle is there, which is connected throughout. Here you can see the vertical bar is there. You can say, right? This is called spindle, right? So further, after that, we will see the two axes. You can say inner axis and outer axis. So we will understand that what is the function of the inner axis and outer axis. Okay, we will see that. Further, we have drawn this spindle also. You can see I'm highlighting it. Right. I hope that you are getting the picture of this theodolite. Right. So these things we have drawn. Yes or no? Right. Okay, fine. So half the work is done. Right. After that, we will have a reading plate. You can say upper plate and lower plate. So it is at the bottom. So it is referred as a lower plate. Okay. And above that, one another plate is there to take the reading, which is referred as a upper plate. तो यहाँ पे दो प्लेट्स होती है, एक नीचे की तरफ होती है, जो बॉटम वाली जो है मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, वो बॉटम वाली जो है उसको हम लोअर प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये मैंने लोअर प्लेट हाइट की। इसके ऊपर एक और प्लेट होती है, सो दैट इज यू कैन कंसीडर एज ए अपर प्लेट, राइट? सो हाउ इट वर्क्स विल सी, राइट? हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। ठीक है, और समझे। देन वी हैव ए फ्रेम, क्योंकि इसका शेप जो है ए फ्रेम है, इस पर हम जो है ये ए फ्रेम बनाएंगे, राइट? तो ये मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो ए फ्रेम वो चीज है जो हमारे टेलीस्कोप को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज माय ए फ्रेम, आई एम हाईलाइटिंग इट, राइट? बिकॉज इट्स लुक लाइक ए, राइट? इट इज a like structure. So this is the horizontal axis, I am drawing it, right? So this is horizontal axis. So this frame will provide the support to the telescope, right? So now the telescope will rotate with respect to this horizontal axis in a vertical plane, right? So the reading of the telescope will be shown in the vertical circle, right? That how much angle is formed between two lines, between two reference line and your observation, right? So this is a vertical curve. Okay, and another thing is we have a plate bubble for leveling purpose. Here you can see at the upper plate you will find a bubble, and meanwhile for the leveling of that vertical circle, or you can say telescope, whether it is a horizontal plane or not, right? So we will take care about both the bubble, right? So that must be in the center portion, altitude bubble that you can say. And above that we have adjustable mirror, so that if you want to observe the altitude bubble, you need to observe from it an adjustable mirror. आपको वहां पे एक मिरर होगा, उसमें देख के आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज कि ये थोड़ा जैसे हम सेट करेंगे तो आपके हाइट के जितना हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट।
तो आपको अल्टीट्यूड बबल ऊपर से देखना होता है, लेकिन आप जो है ऊपर से नहीं देख पाते, इसलिए हमने वहां पे मिरर फिट कर दिया, ठीक है। फर्दर you can say the readings are observed in the vertical circle and the support is provided like this, right? One compass is also there, okay, but we will understand that also, right? Further thing is we have a tangent screw is there, here you can see, right? And another you can say the vertical clamping screw, you can say, right? And another component is telescope. So after that we will draw the telescope like this, okay, and focusing screw to focus the object, okay, which you are observing. And vertical clamping screw is perpendicular to the tangential screw. So this is a complete sketch of a theodolite, okay. At the bottom you will have a plumb bob for centering purpose. So standard is nothing but you can write a frame, right? A frame, because it is providing the support to the telescope. So I hope that you are clear with this image components. अब मैं आपको ये रियल जो है थियोडोलाइट उसमें मैं आपको कंपोनेंट्स दिखाते जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वन बाय वन हमने इमेजेस लिया है, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। सो दिस इज माय, यू कैन कंसीडर दिस बॉटम पोर्शन आई एम हाईलाइटिंग विद द येलो, that is you can consider as a trivate, yes or no? Why it is called trivate? Because it is in the triangular shape, that's why, okay. So this is elevation, so you will have a vision of the only two screws, but the third screw is behind that three screws, right, behind the two screws. So it is like in a triangular shape like this, okay. So first screw is here, which is visible to you because it is an elevation, okay. Another screw is also here. The third one is behind these two screws, so this is that screw, right. So this is you can consider as a trivate, above which we have a foot screw, yes or no? ये दिख रहा है, यहाँ पे हमें 3 फुट स्क्रू मिलेंगे। दिस इज द rear one, this is the front foot screw, you can say refer is, right. So as we are doing in the dumpy level, we have a similar kind of the practice to level the theodolite, right. At the bottom you will see this is you can say tri badge, right. So above the foot, so as we have drawn in the theodolite, you can see here, this is my tri badge, right. So I'm referring that, so that is my tri badge, right. So the foot screw will end will there, and the whole mechanism now is supported by that tri badge, okay fine. So अगर बीच में आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। So now the our whole instrument will rest on the tri badge. So further I'm taking that, so this is that uh, 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 next component, you can say. So this is my tri-weight foot screw, tri-badge, okay. So foot screw will end over here, right. Now above which we have a 2 plates, you can say, simple. So this is a spindle structure, you can say, so that our theodolite can rotate in the horizontal plane as well as vertical plane also, right. So basically the function of this spindle is to rotate the theodolite in a horizontal plane, right. So this is that spindle we have drawn in the sketch. Another you can see we have 2 screws over here, you can say this is the first one, this is the second one, yes or no, आपको ये दिख रहा? So that's, you can see this screw, I'm indicating this, right. So as we have aware about that, we have 2 plates for taking the readings. One is the lower plate, another is the upper plate. So here you can see it is, hence it is the at the bottom side, you can say I'm mentioning the level of the 2 screws. This is my first screw, right, and this is, which I'm indicating, this is my second screw.
So can you identify the difference in the level? उन दोनों में वर्टिकली एक लेवल है, ठीक है। पहला स्क्रू जो है वो दूसरे से नीचे है, दिख रहा है आपको? यस सर। मीनवाइल जो है दूसरा जो स्क्रू है, ठीक है, वो पहले वाले स्क्रू से ऊपर है। यस और नो? दिख रहा है आपको सबको? सो दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे इज कि अगर आपकी जो लोअर प्लेट है, ठीक है, लोअर प्लेट है, वो लोअर वाले क्लैंपिंग स्क्रू से जुड़ी हुई है। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये जो इसको आप ओपन करेंगे या फिर क्लोज करेंगे, या फिर हम टेक्निकली बोले उसको क्लेम करेंगे या फिर अनक्लेम करेंगे, क्लेम या फिर रिलीज करेंगे, तो लोअर प्लेट की मूवमेंट में चेंजेस आएंगे। ओके, सो इट विल अफेक्ट द रीडिंग्स of the lower plate. So we have a lower clamping screw which is indicated at the lower level, lower clamping. Okay, so we have lower clamping screw which is indicated by the 1 number, and another is upper clamping screw, right? Upper clamping screw. So now another thing is that there is a one perpendicular screw is there, you can see here, right? So when you look from the plan, let us say I'm drawing a upper clamping screw over here, right? This is my upper clamping screw. Perpendicular to that we have a tangent screw. Okay, so it is this screw. Similarly, this will happen to the lower clamping screw also. Hello? So this is my lower clamping screw, let us say I'm drawing over here. This is my lower clamping screw, let us say, right? So this is my exactly perpendicular, this is my tangential screw, lower tangential screw, lower. This is my lower clamping screw, and exactly 90 degree, that is my lower tangential screw, right? Because whenever you talk about the tangent, right, so that is always at the 90 degree. So अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें दिख क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे हमें लोअर टेंजेंशियल स्क्रू कहाँ पे है? चलो अब दीपक कुमार चौधरी, आप मुझे ये बताइए यहाँ पे लोअर टेंजेंशियल स्क्रू कहाँ पे है इसमें, इस इमेज में आप मुझे बताइए। सर यही है सर जो आप हाईलाइट किए हैं यहाँ पर ब्लैक कलर में। नहीं, वो तो अपर टेंजेंशियल स्क्रू है, मैं लोअर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद अपर। सर यहाँ यहाँ सर यहाँ एल टी से यहाँ पर लिखे हैं 1। कहाँ पे? सर यहाँ पे? ये सर इसके नीचे वो ब्लैक वो यही है सर। ये वाला? नहीं सर, तो इसे वो पहले से बनाए हैं यहाँ पर। आप मुझे क्लोज बताइए, किया टॉप लेफ्ट टॉप राइट कौन सा वाला कॉर्नर पे? सर, लेफ्ट साइड सर, हाँ, लेफ्ट जहाँ अंगली दिखाया है सर। हाँ हाँ, ये वाला? वही है सर, यस सर। ये तो लोअर क्लैंपिंग स्क्रू है, हमें बात करनी है लोअर टेंजेंशियल क्लैंपिंग स्क्रू। સર તમે હાઇલાઇટ કર્યું એની વાહે यस, तो जैसे मैंने आपको बताया वही आपको ध्यान में रखना है कि टेंजेंशियल स्क्रू कहां पे होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि अपर क्लैंपिंग स्क्रू है, ठीक है, तो अपर क्लैंपिंग स्क्रू है तो उसके परपेंडिकुलर जो है हमारा टेंजेंशियल स्क्रू होगा। तो यहाँ पे ये सामने की तरफ आपको अपर तो दिख रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, लोअर कहाँ पे है, उसके पीछे है। तो ये जो है, ये वाला जो है यहाँ की इसकी पीछे है वहां पे, ये तो हमें समझना है, ठीक है।
तो टोटल कितने स्क्रू हुए? 4 स्क्रू। समझ में आया? फर्स्ट वन इज लोअर क्लैंपिंग स्क्रू, सेकंड वन इज अपर क्लैंपिंग स्क्रू, फिर लोअर क्लैंपिंग के स्क्रू से 90 डिग्री पे, उनकी एक्सिस से 90 डिग्री पे हमारा लोअर टेंजेंशियल स्क्रू आएगा, और सिमिलरली अपर क्लैंपिंग स्क्रू की एक्सिस के 90 डिग्री पे हमारा अपर टेंजेंशियल स्क्रू आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि लोअर क्लैंपिंग स्क्रू जो है वो लोअर प्लेट से कनेक्टेड होता है, और अपर क्लैंपिंग स्क्रू जो है वो अपर प्लेट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, क्लियर? अभी मैं वापस से कह रहा हूं, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताएं। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तभी आपको कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लोअर क्लैंपिंग है, कौन सा अपर क्लैंपिंग है। ठीक है, क्योंकि हर एक का फंक्शन अलग अलग है। ठीक है, फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो अब जो है हमारे यहाँ पे जो सर्कल है, उसमें उसके अंदर क्या है? हमारी दोनों प्लेट्स है। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल है। ठीक है, इस तरह का सर्कल है। ठीक है, क्योंकि ये एलिवेशन है, आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। सो दैट सर्कल, उस सर्कल के अंदर क्या है? हमारी दो प्लेट्स है, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट, और उसके हिसाब से हम रीडिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो अब रीडिंग के लिए मैं आपको बताता हूं कि जो अपर प्लेट और लोअर प्लेट के साथ कनेक्टेड होते हैं उसका रीडिंग हम ए और बी नोटेशन देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है, जिसमें आप अच्छे से रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट अस, यस, मैं आपको जैसे बताया था कि ये हमारा अपर क्लैंपिंग स्क्रू है। ठीक है, और इसकी ये एक्सिस है, उससे 90 डिग्री पे हमारा ये टेंजेंशियल स्क्रू है। यस और नो? ठीक है, ये आपको मैंने क्लियर आइडिया देने के लिए, समझ में आ रही है बात? तो सिमिलरली लोअर क्लैंपिंग स्क्रू के साथ भी रिवर्स होगा। ये इस तरफ है तो वो सामने की साइड चला जाएगा। यस, दिस इज दैट बैकवर्ड, दिस इज लोअर क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक है, और उससे ये जो दिख रहा था ना आपको, फ्रंट में दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे जो है आप ये देख सकते हैं, ये एक्सिस है, और उसके पीछे जो है ये लोअर क्लैंपिंग, लोअर टेंजेंशियल क्लैंपिंग। मैं आपको ये दिखाता हूँ ये किस तरह से, ये जो सर्कल आप याद रखिए, ये जो दिख रही है वो हमारी ये वाली है। हम अब इस तरफ से देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को इस तरफ से देखेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तब आपको ये दिखेगा। ठीक है, आप पहले हमारा जो स्केच था वो हम इस तरफ से देख रहे थे। ठीक है, अब हम चल के यहाँ पे आ गए सामने की ओर, तो क्या होगा कि आपको लोअर टेंजेंशियल स्क्रू भी दिखेगा। राइट, फर्दर अब आपको इसमें देखेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ए नजर आता होगा। ठीक है, सो दिस इज मार्केड एज ए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे ये बताइए कि ए जो हमारा वर्नियर है उस पे रीडिंग क्या है। ठीक है, तब आपको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ए है, कौन सा बी है। ठीक है, तो वहां पे क्लियर कट मेंशन किया होगा, ये आपको विजिबल है, ए लिखा, मैं जूम कर दूं थोड़ा आपके लिए। तो लेट अस मेक इट दैट, making this image bigger so that you will have an idea, right? दिख रहा है? अब जो है आपको मैं यहाँ पे यस दिखाता सर, हूँ, देखा ही है सर। दिस इज मार्क एज ए। लेकिन क्योंकि हमने ये फोटोग्राफ लिया है, ठीक है, ये इट इज वेरी टाइनी, इट इज वेरी स्मॉल, आपको वहां पे ये मैग्नीफाइंग ग्लास में देखना होगा। ठीक है, और तभी पता चलेगा कि ये हमारा वर्नियर ए पे है। ठीक है, ए रीडिंग, तो हम पहले जो लोअर प्लेट जो है इस कंपास में से रीडिंग्स लेंगे, तो उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ए वर्नियर रीडिंग ऑन ए,
ठीक है। सो ऐसे उसके सामने की तरफ बी भी है, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। राइट, क्योंकि ये जो अभी मैं सारी चीजें जो आपको बता रहा हूँ वही आपको वहां पे मैं आपको जैसे ही आप कॉलेज आओगे मैं डायरेक्टली ये इक्विपमेंट आपको दे दूंगा और आपको मुझे बताना है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, ठीक है। देन यू कैन सी हियर दिस इज बी इज देयर, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज वर्नियर बी, ठीक है। देख सकते हैं वहां पे दो प्लेट्स हैं, एक जो है बॉटम वाली है, दिस इज दैट सेपरेटिंग लाइन। तो नीचे वाली जो प्लेट है वो लोअर प्लेट है, ऊपर वाली जो प्लेट है वो अपर प्लेट है। ऊपर वाली जो प्लेट है वो वर्नियर होता है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट। सो वर्नियर रीडिंग ऑन बी, that will be a technical word for taking the readings on the theodolite, right? So मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा कि ए और दोनों जो है, दोनों के ए और बी के बीच में, दोनों के बीच में एंगल है 80 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री, ठीक है। तो वो सामने सामने है, जैसे मैं इसको सर्कल बना दूं, ठीक है। तो अगर आपका वर्नियर ए यहाँ पे है, ठीक है, तो उसके एग्जैक्ट सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका वर्नियर बी होगा, राइट। सो दिस इज दैट केस। सो यहाँ पे हमें 0 रीडिंग्स होगा, तो इसका मतलब ये है कि 180 डिग्री होगा, ठीक है, राइट। सो बाय एडिंग द 180 डिग्री इन द जीरो, राइट। आपको समझ में आ रहा है? अब भाई पार्थ, पार्थ कक्कड़, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है। करण कुमार चौधरी, ये सर। समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? ये सर। अनंत कुमार श्रीवास्तव, यस सर। ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। तो जैसे हमारे लोअर और अपर प्लेट के साथ ए और बी रीडिंग है, ठीक है, वैसे ही हम जैसे ये टेलीस्कोप है हमारा, तो उसमें भी सेम है सिचुएशन। तो मान लीजिए यहाँ पे सी है और डी है, सेम प्लेट है, लेकिन हमने वर्टिकल प्लेन में उसको रेस्ट करवा दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट में हमने वर्टिकल प्लेन में जो है उसको रेस्ट करवा दिया, तो सर्कल वही है, रीडिंग्स वही है, मेथड भी सेम है। लेकिन अब जब मैं आपको बताऊं कि आपको मुझे रीडिंग देना है, वर्नियर ऑन डी का रीडिंग आप मुझे दीजिए, तब आपको कहां से रीडिंग देना है। तो सपोज ये सी है, तो ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो सेम थिंग है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, और ये मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग जो ग्लास है उनमें से आप रीडिंग देखेंगे। जस्ट ए मिनट, हाँ। ओके। सो आपको ये पता चला, जैसे हमारे ए और बी में जो ये सर्कल है, पूरा सर्कल बन रहा है, तो सर्कल जो है उसमें कैसा था, लोअर और अपर प्लेट में ए यहाँ पे था, और सेम थिंग बी है, वो एग्जैक्ट ऑपोजिट 180 डिग्री पे था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे वर्टिकल सर्कल में सेम थिंग होगा। सी जो है, मान लीजिए यहाँ पे सी है, अगर एक ही जगह सी है, ठीक है, तो सामने की तरफ डी होगा, और सी पे मान लीजिए आपका 20 डिग्री एंगल दिखा रहा है, तो डी पे कितना होगा उमेश कुमार? उमेश कुमार है क्लास में? यस परमार, आप बताइए। अगर सी पे रीडिंग 20 डिग्री होगा, वर्नियर स्केल सी पे 20 डिग्री होगा, तो वर्नियर स्केल डी पे कितना रीडिंग होगा? यस परमार। ई
बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग। ठीक है, आपको यही पता होना चाहिए। આ સૌથી ઈજી છે અને આજ તમારે સમજવાનું છે। યસ, ચલો। પ્રસિદ્ધ ચાવડા, સી આગળ 20 ડિગ્રી હોય તો ડી આગળ કેટલું હોય? અટેન્ટિવ રહો તો તમને ખબર પડશે, નહીં તો નહીં ખબર પડે। બે ઓપોઝિટ છે, સી બોટમ સાઈડ છે અને એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ ડી છે, તો તમે વર્લ સર્કલ બેરિંગ મેથડમાં કરતા હતા સેમ વસ્તુ। C is C having a 20 degree reading, so obvious that we will add 180 degree in that, right? So we will have a 200 degree at the D you are near, simple as that। ये किसको समझ में नहीं आया? आप एक यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। आप, सिंपल है, आपके सामने ही दिख रहा है। मैं अगर आपको बता रहा हूं तो ये कितना एंगल होगा, ये वर्टिकल मैंने कर दिया, ये सर्कल ही तो हुआ। ठीक है, तो ये 90 है और 90 और ऐड कर दिया, तो सी पे मैंने 20 बोला, तो ये कितना होगा डी पे? सिंपल एज दैट, 200 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है? किसको अभी कंफ्यूजन है आप मुझे बताइए। अभी नहीं बताएंगे तो फील्ड में जाके आपको प्रॉब्लम ज्यादा सर, होगी, एक बार रिपीट पता ही करना नहीं आपको होगा। ना। हाँ सर, एक बार हजी एक बार हाँ समझाई दे। हाँ। So simple thing is that this is a circle you can consider। आपको जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सर्कल दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल है आपका। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज माय सर्कल। ठीक है, अब जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लीजिए सी जो है, सी, ठीक है, वो प्लेट जो टेलीस्कोप से कनेक्टेड है, तो यहां पे 0 है सपोज। ठीक है, रीडिंग यहां पे आपको 0 बता रहा है, तो यहां पे क्या बताएगा डी पे? तो आपको यूं घूम के आएंगे तो ये कितना हुआ एक लाइन में? 180 सर। तो दैट व्हाट आई एम आस्किंग, कि अगर मैंने बता दिया कि यहाँ पे 20 डिग्री है तो कितना होगा? 200 सिंपल, 180 प्लस 20। यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया तो 5 डिग्री है, तो कितना होगा यहाँ पे? 185 सिंपल एज दैट, 185 सिंपल। तो वही चीज जो हमें सीखनी है। ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो है आप वहां पे देख पाएंगे कि जैसे हमने ए और बी देखा था, वैसे ही हम सी और डी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज माय सी प्लेट, दिख रहा है टेलीस्कोप के पास में, यस सर राइट? सी दिख रहा है। सो मैं आपको बताऊं कि आपको सी पे रीडिंग देना है, तो आप यहां से मुझे रीडिंग देख के बताएंगे। ठीक है, राइट। फर्दर इज वी हैव ए डी ऑल्सो, दिख रहा है यहाँ पे डी, यहाँ पे शायद होगा। ठीक है, डी डार्क मोशन, राइट। सो सिमिलरली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम एक ही थ्योरेट की मदद से एक ही ऑब्जर्वेशन पे 4 रीडिंग ले सकते हैं, ए बी सी एंड डी। ये आपको सर, मालूम? डी पर કોર્નર પર છે, हाँ, તમને વિઝિબલ થાય છે મને અહીંયા? દેખાય છે। यस Okay, सर yes, दिख here. रहा है। Okay, okay, okay. I got that. Because I assume that there is here you can see, right? Instead of here. वहां पे आपको डी दिख रहा होगा। ठीक है, सो दैट इज द टास्क। अगर एक ही पोजीशन पे आप 4 रीडिंग ले सकते हो, और वो किन में? डिग्री, मिनट और सेकंड में, जैसे हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल में से डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो मान लीजिए मैं आपको एक बताऊं, अब मैं आपको बोर्ड की ओर ले जाता हूं। ठीक है, तो हमें क्या है कि सिंपल ट्रावर्स आप बना लीजिए कोई भी, तो एक ही पोजीशन पे हम 4 रीडिंग ले पाएंगे, राइट? सो यू कैन सी आई एम ड्रॉइंग ए line over here. Let us say I'm drawing a one line over here, and second, just make it a closed traverse so you will have an idea, right?
right? So let's make a traverse over there. Yes. So let us say this is my traverse. A, B, C, D. I will mark simply that, right? So this is A, you can consider B, C, and D. So if your instrument over here, right? So if you want to measure the angle between AB and AD, let us say alpha. So when you shift, when your telescope is in this direction, you will have a 4 readings. First is AB, right? On the lower clamping screw, lower plate or upper plate, and CD on the vertical circle. ठीक है, तो एक ही पोजीशन में आपको पूरा जो है 4 आपको मिलेंगे रीडिंग. ठीक है, अब आई बात समझ में. सो मान लीजिए यहाँ पे अपने 0 एंगल है और ये अल्फा का एंगल आप ले लीजिए, यू कैन से 99 डिग्री, राइट. सो अब अगर आपको ए पे 99 डिग्री दिख रहा है तो बी पे कितना होगा, उसमें 188 कर दीजिए, राइट. तो बी, हाँ, तो बी पे जो है आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, राइट. क्लियर. तो यहीं पे हम एक्यूरेसी जो है हम ऐड करेंगे यहाँ पे कि ए पे यहाँ पे है, बी पे इतना है, तो हमारा कितना एरर हुआ ऑब्जर्वेशन में. ठीक है, वो हम सीखेंगे. ओके, सो फर्दर इज दैट दिस इज a complete, you can say this is, let us say this is A reading, this is B reading, this is C reading and D reading. आपको बात समझ में आई. एक प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये वाली प्लेट जो है हॉरिजॉन्टल सर्कल में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये वाली जो प्लेट है वो सीधा नहीं है, वो क्या है, सर्कल है. ठीक है, तो सर्कल जो है उसमें भी 2 रीडिंग्स आप ले सकते हैं. ठीक है, एक ये हो गया लेट अस से डी रीडिंग, तो उस तरफ क्या है, सी रीडिंग. ठीक है, अब एक और चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जैसे हमारा लोअर क्लैंपिंग स्क्रू था, ये लोअर क्लैंपिंग स्क्रू थे, ठीक है, और ये अपर क्लैंपिंग स्क्रू है. ठीक है, आपको लेवल डिफरेंस दिख रहा है. तो वैसे ही टेलीस्कोप को कंट्रोल करने के लिए हमारे क्या है, वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू. तो ये जो ऊपर वाला जो है वो क्या है, वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू है, और उससे एकदम परपेंडिकुलर, राइट, एकदम परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला जो है वो एंड पोर्शन है. ठीक है, एंड है उसका टेंजेंशियल स्क्रू का. टेंजेंट स्क्रू कहां पे है, पीछे की साइड है, दिख रहा है आपको. सो दैट इज द टेंजेंशियल, वर्टिकल टेंजेंशियल स्क्रू, यू कैन से, राइट. सो उसके साइड में आप स्केच में देख सकते हैं, तो ये हमारा फोकसिंग स्क्रू है, और ये हमारा टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्ट पीस है और आई पीस है. यहाँ पे एक प्लेट बबल है पीछे की साइड, और यहाँ पे भी एक प्लेट बबल है, और यहाँ पे एक मिरर है. ठीक है, और ये जो है हमारा वर्टिकल सर्कल है. तो यही हमारा पूरा कंप्लीट थियोडोलाइट है. आप देख सकते हो, आप हर एक कंपोनेंट को मैच करवा सकते हैं. ठीक है, मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि आप ऑल टुगेदर, राइट. सो ये हमारा पहला क्या है, ट्राई वेट, उसके बाद फुट स्क्रू, उसके बाद ट्राई बेच, उसके बाद ये हमारा स्पिंडल आएगा, और एक फ्रेम नेटवर्क आएगा जिसपे हमारे क्लैंपिंग स्क्रूज रेस्ट करेंगे. ठीक है, फिर ये हो गया हमारा कंपास, यू कैन से, अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट, इसमें इसके अंदर अपर प्लेट और लोअर प्लेट है. उसके बाद जो है ये हमारा ए फ्रेम हो गया, क्योंकि इट्स लुक्स लाइक ए. यस और नो? यस सर. राइट. ए फ्रेम जो है वो कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से. वहां पे ये टेलीस्कोप हमने रेस्ट करवा दिया. ठीक है, और टेलीस्कोप जैसे ही आपने वहां पे रेस्ट करवा दिया, उसके बाजू में जो है ये आप लोअर क्लैंपिंग स्क्रू आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट के साथ, लोअर प्लेट के साथ कनेक्टेड है, और उसके पीछे की साइड क्या होगा, टेंजेंशियल स्क्रू. ठीक है, तो ये जो है टेंजेंशियल स्क्रू है पीछे की साइड. सिमिलरली अपर प्लेट जो है अपर क्लैंपिंग स्क्रू के साथ कनेक्टेड होगा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, अपर क्लैंपिंग स्क्रू, अपर टेंजेंशियल क्लैंपिंग स्क्रू.
Meanwhile, this is for reading taking A, this is for B, this is a magnifying glass, right? Further thing you can say, this is vertical clamping screw, this is focusing screw, this is vertical tangential clamping screw, right? Then here this is my plate bubble, both, right? You can see the plate bubbles are perpendicular to each other. एक plate bubble पीछे के साइड इस तरफ है, तो दूसरी प्लेट जो है बबल जो है उसके एकदम परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मिरर है और ये हमारा वर्टिकल सर्कल है जहां पे हम सी और डी का रीडिंग लेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। राइट, तो यही आपको समझना है। अब जो मैं आपको आपके सीनियर्स जो थे उनके द्वारा, ये दिस इज द बबल प्लेट, यू कैन से, राइट? तो दिस इज द, वो नीचे की तरफ जो है वो कनेक्टेड है लोअर प्लेट के साथ, ठीक है? वो प्लेट जहां पे होती है, तो दिस इज यू कैन कंसीडर एज अ बबल ट्यूब, राइट? और एक ऊपर की तरफ भी है, देखिए ये वर्टिकल सर्कल है, टेलीस्कोप है, वहां पे भी है। लेकिन एक चीज ये है कि ये दोनों बबल प्लेट जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगी, राइट? सो दे बोथ आर एग्जैक्टली एट द 90 डिग्री, राइट? दिख रहा है? सो वी विल एडजस्ट दैट थिंग्स, राइट? और दिस इज अ कंप्लीट असेंबली ऑफ द थ्योरेड। यू कैन से दिस इज वर्टिकल screw, eyepiece, object piece is there, right? And this is a complete assembly of theodolite. अब जो है मैं आपको क्या, ये वर्टिकल, ये जो प्लेट है, ठीक है, वर्टिकल प्लेट यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टिकल सर्कल, और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल जहाँ पे है, ठीक है, जिसमें लोअर प्लेट और अपर प्लेट है, वो कैसे काम करता है वो मैं आपको अभी एक दिखाता हूँ, ठीक है? तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम ये लोअर क्लैंपिंग स्क्रू जो है वो हम फिक्स करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, जस्ट गिव मी now, is it, you can say I'm turning on my video so you will have an idea. तो आपको ये दिख रहा है? Yes, sir. तो ये बेसिकली क्या है कि हमने जो अंदर की जो प्लेट है, ठीक है, अंदर की दोनों प्लेट्स है, उसको हमने बाहर ले लिया, ठीक है? तो ये आपके सीनियर्स ने ही बनाया था प्रोजेक्ट। तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो प्लेट्स है, ठीक है, दोनों, उसको हमने बाहर निकल लिया और समझाने के लिए, ताकि हमें आसानी रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये टेलीस्कोप हमने ऐसे ही आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है, ठीक है, राइट? अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तब आपको आसानी रहेगी, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये टेलीस्कोप है वो कैसे घूमेगा, ये 360 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन घूमेगा, ठीक है, ये सुनो। और दूसरा जो है ये हमारे दोनों प्लेट्स है, ठीक है? तो स्पिंडल की जो मैं बात कर रहा था वो यही है कि ये हमारी कौन सी प्लेट हो गई, अपर प्लेट हो गई, ठीक है, ठीक है? और नीचे वाली जो प्लेट है वो हमारी लोअर प्लेट हो गई, ठीक है? और ये जो बाकी बच गया है वो आपका स्पिंडल है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी असेंबली रेस्ट करती है, तो इसको हम स्पिंडल बोलेंगे।
तो ये स्पिंडल जो है ऐसे आपने वर्टिकल आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो फिट है, ठीक है, वो इसके ऊपर सबसे पहले क्या आएगा, लोअर प्लेट आ जाएगा, ये सुनो, और ऐसे घूमेगी, जैसे आप इक्विपमेंट घुमाएंगे वैसे ये इस तरह से घूमेगी। वन मोर थिंग, अगर इसको आपको रोकना है, जैसे हमारे व्हीकल में ब्रेक होता है, तो वैसे ही हमारे लिए क्या है, लोअर प्लेट किससे जुड़ी हुई है, लोअर क्लैंपिंग स्क्रू। तो जैसे हम क्लैंप करेंगे तो वहां पे ऐसे रुक जाएगा, ठीक है। सिमिलर थिंग, ये हमारी अपर प्लेट आ गई, यस और नो, राइट। Yes. तो इसमें अब क्या है कि ये अपर प्लेट आ गई, तो हमारा काम ये है बेसिकली कि आपको एक कब जो है वो लोअर प्लेट घुमानी है, ठीक है, और कब जो है आपको अपर प्लेट घुमानी है, और कब जो है आपको दोनों को फिक्स करके रखना है, और कब दोनों को ओपन करके रखना है। तो बेसिकली देयर आर 4 केस बन सकता है। आपके पास लोअर प्लेट है, अपर प्लेट है, तो लोअर प्लेट को आप अगर क्लैंपिंग स्क्रू बंद करेंगे तो लोअर प्लेट क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और अनक्लैंप करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली बोथ ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल टू द अपर प्लेट आल्सो, राइट। तो अपर प्लेट भी ऐसे तरीके से काम करेगी। तो आप देख सकते हैं, अब मैं आपको ऑपरेशन, चारों ऑपरेशन करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए जो है लोअर क्लैंप आपने बंद करके रखा हुआ है और अपर क्लैंप आपका खुला है, तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। बॉटम वाली जो प्लेट है वो फिक्स हो जाएगी, और ऊपर वाली जो प्लेट है वो रोटेट कर पाएगी ऐसे। उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए अपर क्लैंपिंग स्क्रू जो आपने फिक्स किया है, तो ये हमारा फिक्स हो गया, ऊपर जो प्लेट है वो फिक्स हो गई, और लोअर वाली प्लेट जो है वो रोटेट कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे दिख रहा है। तो बेसिकली सारा अंडरस्टैंडिंग इसी पे है कि आप कैसे जो है थियोलाइट को समझेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें रीडिंग्स भी है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहला टास्क ये रहेगा कि 0 जो है, ठीक है, उसमें अपर प्लेट है जिसमें कितना रीडिंग है देख सकते हैं, 0 to 20 डिग्री, यस और नो, Yes. ओके। और नीचे वाली जो प्लेट है उसमें आपको मैं रोटेट करके दिखाता हूं कि 0 के सामने, अपर वाली प्लेट के 0 के सामने कितने पास होते हैं, ठीक है। तो 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, राइट। तो लोअर वाले प्लेट में कौन से कितने रीडिंग्स होंगे, देख सकते हैं, पूरा सर्कल, हाँ पूरा सर्कल 360 डिग्री, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सर्कल, यू कैन से हियर दिस इज रीडिंग, दिस रीडिंग्स इंडिकेट्स 330 डिग्री। क्योंकि ये हमने बाहर निकाल के इसमें रख दिया है, तो यहाँ पे आपको आसानी से दिख रहा है, ठीक है। मैंने जो ये सर्कल दोनों है हमने इंस्ट्रूमेंट में से बाहर निकाल के एक डेमोन्स्ट्रेशन बना दिया, लेकिन आप जब फील्ड पे जाएंगे तब आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये इट इज वेरी टाइनी नंबर्स, आपको बहुत छोटे छोटे उसमें होंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस आर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थियोडोलाइट। तो यही जो है चीज हम फील्ड में करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक प्रैक्टिस आपको समझ में आ रही है तो बाकी की सारी जो रीडिंग्स ऑब्जर्वेशन है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स में से। और उसके बाद जो है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लोअर प्लेट है और अपर प्लेट है। अगर मान लीजिए ये वर्टिकल सर्कल इसको मुझे करना है तो कैसे होगा, सिंपल थिंग दैट जो वर्टिकल सर्कल है आपका, आपने जो स्केच बनाया है उसमें भी इस तरह का ही फिनोमिना है, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कल में क्या होगा, ऐसे होगा, प्लेट तो वही है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल का है, ठीक है, और यहाँ पे कंपास है वो ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन अब जो है आप वर्टिकल सर्कल की बात करें तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे आपके गाड़ी का पहिया होता है, राइट। सो फिनोमिना वही है, सेम थिंग है, लेकिन आप जो है वर्टिकल सर्कल की बात करें तो ये वर्टिकल प्लेन में हो जाएगा, और एक्सिस क्या रहेगी इसकी, हॉरिजॉन्टल। देखिए मैंने इसको होल्ड कहां पे किया है, कौन सी एक्सिस पे किया है। अगर इसको मुझे रोटेट करना है तो कैसे रोटेट होगा,
वर्टिकल प्लेन में रोटेट होगा, लेकिन एक्सिस कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। तो यही है सारा जो अंडरस्टैंडिंग थियोडोलाइट का कि किस तरह से काम करता है, ठीक है। और जब में हम लेबोरेटरी में आएंगे तब मैं आपको ये इक्विपमेंट आपको दूंगा और आपको मुझे सारे कंपोनेंट के फंक्शंस आपको मुझे बताने होंगे, ठीक है। और भी टेक्निकल टर्म्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज जो है आपको समझना होगा, ठीक है। आपको ये भी ऑब्जर्व करना है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, जस्ट ओके। आप देखिए अब यहाँ पे, तो ये हमारा वर्टिकल प्लेट पे क्या दिख रहा है आपको? ए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक है। तो Yes, ए sir. के सामने अगर मान लीजिए मैं 180 रख दूं एंगल पे, ठीक है, तो बी पे क्या होगा? बी पे 0 होगा। है कि नहीं? 0 दिख रहा है। अगर ए पे रीडिंग मेरा 180 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फोकस में करता हूं, ठीक है। अगर ए पे आपको 180 डिग्री है, ठीक है, तो बी पे कितना होगा? 0। ऐसा मान लीजिए ए पे मैं 0 लेके आता हूं, यस सर। तो ये एग्जैक्टली मैं ए पे मैंने 0 ला दिया, तो बी पे कितना होगा? देखिए बी पे 0 पे कहां पे 180। इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। तो यही जो है आपके सीन नाम भी है, ठीक है। यहाँ बरोबर નથી આવતું। क्लियर? तो यही आपको समझना है कि मैंने यही आपको पूछा था। यहाँ पे अगर आपको 20 डिग्री होगा तो वहां पे कितना होगा? 200। तो यही आपको समझना है कि अपर प्लेट में जो है वर्नियर होता है, जिसमें 0 से 20 डिग्री तक होता है, 20 डिग्री, ठीक है। और लोअर प्लेट में कहां तक होता है? 360 डिग्री पे। सिमिलरली आप वर्टिकल सर्कल में भी बात करें तो ऐसा ही होता है। सी और डी आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। सी में 0 to 20 और लोअर प्लेट जो है 0 to 360 डिग्री, राइट। अब जो है आपके लिए मैंने ये सर्वेइंग की जो बुक है, ठीक है, NN बसक बुक है, वो मैंने आपके ई कंटेंट में अपलोड की गई है, ठीक है। उसमें आपका एक चैप्टर है थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग, ठीक है। तो वो आपको रिफर करना है, ओनली फंक्शंस, ठीक है। पेज नंबर भी आपको मैं बता देता हूँ, 257 पेज पे है, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ सर्वेइंग। आप ये बुक जो है ये लाइब्रेरी में अवेलेबल है, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, ठीक है। बाय, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देता हूँ NN बसक। इट इज वेरी सिंपल बुक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका चैप्टर 9 पेज नंबर आपको मैं दिख रहा हूँ कि 257 लेटर से, राइट। 257 पेज नंबर है आपके। तो उनमें ये थियोडोलाइट की वही सारी बात लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। अगर आपको वन पेपर चाहिए तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम नॉट गिविंग यू द डेफिनेशंस, ठीक है। आपको इनकी सभी में डेफिनेशंस नहीं दूंगा, आपको खुद से जो है क्या होता है, अगर उसमें कोई डाउट तो आपको मुझे बताना होगा। अब जो है डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछूंगा, ठीक है। और आपको का आंसर कहाँ से मिलेगा? ई कंटेंट में से NN बसक बुक है, वो मैंने यहाँ पे चैट बुक्स में लिख दिया है कि कौन सा चैप्टर आप रिफर करना है, ठीक है। सो चैप्टर 9 पेज नंबर 257 ऑनवर्ड्स, ठीक है।
257 पेज से लेके आपको चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक आपको रिफर करना है, लेकिन आप धीरे धीरे रिफर करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो हाल ही के लिए आपको 257, फिर 258, 259, 260 and up to you can go with that 266, from 257 to 266 पेज तक आपको रिफर करना है। ठीक है, ये भी मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। तो आपको कभी फील्ड में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको थियोराइड का प्रैक्टिकल कर पाएंगे। अदरवाइज वहां पे आप ब्लैंक हो जाएंगे, उसको वहां पे आपको कोई पता नहीं चलेगा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द थियोरी। कंपोनेंट्स क्या है, डेफिनेशन में आपको पूछूंगा अगले सेशन। ठीक है, आपको प्रिपेयर करके रखनी है कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, वो सिंपल है और आपको वो लिखनी भी है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हो स्केच बुक में, जहाँ पे आपने स्केच बनाया है। ठीक है, वहां पे बाजू में जो है दूसरे पेज पे आप लिख सकते हैं। तो आप पहला क्या हो जाएगा कि आपकी स्केच बुक में पहले तो ये थियोडोलाइट की स्केच होनी चाहिए, राइट। उसके बाद ये सभी कंपोनेंट्स के टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, डेफिनेशंस है, वो आपको ये बुक में से रिफर करके लिखनी है सभी। क्या मैं आपको टोटल डेफिनेशंस कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशंस आर पहले 19 डेफिनेशन है, उसके बाद है 14। सो 19 प्लस 14 कितनी हुई? ठीक है, 19 प्लस 14 इतनी जो टोटल जो आप कर सकते हैं 33, राइट। तो 33 डेफिनेशंस है, वो सभी डेफिनेशंस आपकी स्केच बुक में लिखी होनी चाहिए। कोई डाउट है किसको? ये जो डेफिनेशन है वो सारी डेफिनेशन मैंने वो आपको समझाई है कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, क्लियर? तो टोटल 33 डेफिनेशंस आर देयर, वो आपकी रिफर करनी है। ठीक है, रिफर फ्रॉम एंड बसर। ठीक है, अगर ये रिफर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल में मैं आने नहीं दूंगा। ठीक है, आपको थियरी लिखवाऊंगा, पूरा चैप्टर आपको लिखवाऊंगा, पूरा 9th चैप्टर। क्लियर? ओके फाइन। अब जो है आप रोल नंबर लिख दीजिए और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको मैं टाइम भी दे रहा हूं। ठीक है, સર हाँ ડેફિનેશન જે સ્કેચ બુકમાં લખવાની છે ને? હા હા, સ્કેચબુક ની અંદર તમારે પહેલા આ મૂકવાનું છે, સ્કેચ ડ્રો કરવાનું થિયોડોલાઇટનું અપ ટુ ડેટ કોમ્પોનન્ટ સાથે, અને એની બાજુમાં એની કન્ટિન્યુએશનમાં તમારે ડેફિનેશન્સ લખતી જવાની છે, ડેફિનેશન્સ એન્ડ ફંક્શન્સ। ઓકે ओके, તમે લીવ કરી શકો છો, તમારો रोल नंबर लखाई गयो હોય तो आप लीव कर सकते हैं अगर आपने रोल नंबर लिख दिया हो। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, लीव द मीटिंग प्लीज।